रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप चीनकोठी सर्कस मैदान में बीते 2.5 वर्ष पूर्व कोरोना काल से लगने वाली सब्जी मार्केट को खाली करने का अल्टीमेटम रेलवे विभाग ने दिया था, जिसको लेकर यहां के दुकानदारों में हड़कंप मच गया था। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि बीते 20 तारीख को रानीगंज रेलवे विभाग के एक अधिकारी एवं आरपीएफ के एक जवान आकर यहां के दुकानदारों को 25 जून तक इस स्थान को खाली करने के लिए कहा है। इसको लेकर दुकानदार काफी चिंतित हैं। दुकानदार श्याम सोनकर ने बताया कि कोरोना काल में तत्कालीन जिला शासक के द्वारा उन लोगों को यहां पर बसाया गया था। रेलवे विभाग आप लोग को भी खाली करने के लिए कहा है। कल का रिपोर्ट दिया, लोग कल बोला कि खाली कर देने को। आप लोग क्या कीजिएगा अभी? करना तो सोच रहे कि क्या किया जाए। कितना दिन पहले आके बताया आप लोग को नोटिस ये दिया? बोला 20 तारीख को बोला हम और 25 तारीख तक आप लोग को खाली करना करने है। को। आप लोग यहाँ के जो दुकानदार है, सब्जी विक्रेता लोग, क्या डिसीजन लिए आप लोग? इसलिए हम तो सोच रहे कि अभी रहे अभी, ताकि अभी तो रेलवे का कोई काम तो भी है नहीं, अभी खाली करने को तो फायदा नहीं है। हम सोच रहे कि हम लोग अभी रहे यहाँ पर, जब उनका मन हो तब फिर हम लोग खाली करेंगे, देखा जाए। कितना दिन पहले से आप लोग यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? तो 2.5 साल हो गया। कोरोना के समय आप लोग दुकान लगा रहे हैं, कोरोना से समय हम लोग लगाए हुए हैं। तो फिर फैसला हुआ था कि आप लोग फिर पुराना हटिया के में चले जाइएगा, तो आप लोग गए हम नहीं? लोग तो उस टाइम फिर हम लोग को बोला गया कि अभी रहने दिए, अभी कोई बात नहीं है, अभी आप लोग यहाँ पर रहिए। कितने दुकानदार हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर 100 दुकानदार से बेसी है। अब आप लोग क्या सोचे हैं? भी सोचे कि अभी रहने दीजिए यहाँ पर। नहीं, इसके बाद अगर जोर जबरदस्ती रेलवे करेगा तो आप लोग को हटाएगा, आप क्या कीजिएगा? फिर हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते, क्या किया जाएगा बोलिए। अगर हम लोग को माथा में कोई रहता कि चले कोई यहाँ साथ है तो किया जाता, पर अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम सोनकर। दुकानदार अमित दत्ता ने बताया कि यह जगह रेलवे की है एवं रेलवे की ही रहेगी, पर रेलवे विभाग से हम लोगों का आवेदन है कम से कम हम लोगों को कुछ समय दिया जाए, ताकि हम लोगों का बाजार में जो बाकी बकाया है उसे समेट ले। রেলওয়ের কাছে একটা অনুরোধ, ওনাদের জায়গা ওনারা যদি উঠাচ্ছে তো বড় বড় যেগুলো আছে সেগুলো উঠাক। এটা তো আজ বললে কাল উঠে যাবে। তবে যদি রেল একটু বুঝে, এত তো মার্কেটে এত তো মানুষ বসে করে খাচ্ছে, তার সাথে একজন খালি দোকানদার হিসাবে না দেখে ওনারা। ওনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, ওনারা শুধু এটা দেখুক, একটার সাথে আরও ভ্যানওয়ালা আছে, মুটিওয়ালা আছে, গদিওয়ালা আছে, তার সাথে আদার্স তাদের ফ্যামিলিরাও আছে। একটার জন্য 5টা পেট চলছে। তারা যদি কোনো সিস্টেমের মধ্যে আসে তাতেও আমরা রাজি, আমাদেরকে কিছুদিন সময় দে। ওনাদের জায়গা আমরা নিতেও চাই না, আমাদের নিবার ক্ষমতাও নেই, কিন্তু তার মধ্যে একটাই আমাদের অনুরোধ, যেন ওরা আমাদেরকে কিছুদিন সময় দেয়। হঠাৎ করে যদি এসে বলে আমরা একটা মার্কেটের ব্যবসাদার ক্ষেত্রে আমাদের মার্কেটে এত ধার ছড়িয়ে আছে, সেই ধারগুলো কি হবে? মহাজন তো আমাদেরকে ছাড়বে না, কিন্তু আমরা পাইকারের কাছে পাবো না। তার কারণ কি, পাইকার যখন এখান থেকে বাজার উঠে অন্যদিকে চলে যাবে, তখন পাইকার একটাই কথা বলবে, দাদা আপনাদের বাজার চলে গেছে, আপনারা মাল সময় দিতে পারছেন না, ডেলিভারি করতে পারছেন না, আপনাদের মালের জন্য আমরা ঠিক মতন দোকানদারি করতে পারছি না। ওরা একটা এক্সকিউজ দিবে, এই এক্সকিউজের জন্য কি হলো? আই এম নাথিং, আমি একটা বিগ জিরো হয়ে গেলাম, যেহেতু আমি আমার পাইকারকে অ্যাট এ টাইম মাল দিতে পারলাম না, যার জন্য আই এম নাথিং, আই এম বিগ জিরো। তার জন্য রেলওয়ের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, ওনাদের জায়গা ওনাদের সম্পত্তি কেউ নিতে পারে না, পারবেও না, কিন্তু ওনারা যেন কিছুদিন সময় দেখ, এতগুলো মানুষের মুখ দেখুক, এতগুলো মানুষের সাথে আরো কিছু মানুষ। আপনারা কি ডিআরএম এখানে তো যে আছে, ডিআরএম স্যার যখন এনেছিলেন সেটা লকডাউন ছিলেন, তো আপনারা কি ডিআরএম না, আপনারা কি সব যেখানে এখানে হাটের যত দোকানদার আছেন ডিআরএম সাহেব কাছে যাবেন, আবেদন করবেন এই নিয়ে? আমাদের এটা পরিকল্পনা চলছে, দেখা যাক আমাদের বড় সিনিয়ররা কি বলেন। আমি তো সিনিয়র নয়, আমার উপরে আমার দাদারা আছে, কাকারা আছে। এই বাজারে থাকলে একটা ফ্যামিলি, যেমন বাড়িতে একটা সংসারের মধ্যে যেমন একটা ফ্যামিলি যুক্ত, সেরকম এখানে আমার বড় দাদারা আছে, বড় গার্জেনরা আছে, বড় মাথারা আছে, তারাও আমাদের একটা ফ্যামিলি মেম্বারের গার্জেন, হেড অফ দ্য ফ্যামিলির মতন। ওনারা কি ডিসিশন নেয় ওনাদের মতো আমরা একমত। কেন এখানে আমার নাম হচ্ছে অমিত দত্ত, এখানে প্রতিটা কাস্টমার চাইছে, প্রতিটা লেডিস মানুষ চাইছে। দেখুন দাদা, আই রিকোয়েস্ট ইউ, আমি একটাই কথা বলতে চাই, प्लीज। दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम के एमआईसी एवं वर्तमान रानीगंज बोरो प्रभारी दिव्येंदु भगत ने कहा कि रेलवे की ओर से चीनकोठी मेला मैदान में लगने वाले सब्जी बाजार को हटाने के लिए कोई भी आधिकारिक रूप से रेलवे विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गई है। कोविड-19 काल में इन सब्जी विक्रेताओं को यहां बसाया गया था एवं रेलवे विभाग को अगर इन सब्जी विक्रेताओं को यहां से हटाना भी है तो उसके पहले कम से कम समय देकर सूचना देनी चाहिए। आसनसोल नगर निगम के पास भी इसकी सूचना नहीं है। इस बात की जानकारी हम लोगों ने आसनसोल नगर निगम के मेयर को दे दी है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद जी, आप लोगों को रेलवे विभाग ये जमीन खाली करने के लिए कहा है, 25 तारीख का अंतिम समय दिया है, क्या करिएगा आप लोग ऐसे समय में?
हम लोग को तो डीएम ले आके वो दुकान से ले आके यहाँ बैठाया था। और जब तक डीएम नहीं आएंगे तब तक हम लोग कहाँ छोड़ के जाने वाले हैं। मतलब डीएम के आने के बाद ही आप लोग यहाँ हम से लोग हटिए। डिसाइड कर सकते हैं। और रेलवे अगर आप लोग को जोर जबरदस्ती करके अगर हटाएगा तो उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग धरना में बैठ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। रोजी रोटी बोलिए। ये हम लोग का दुकान उकान नहीं है। हाँ, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई व्यवस्था हो जाए हम लोग का। हाँ, जिसका दुकान नहीं है, हाँ, तो उसके लिए बहुत ये भारी बरन रहेगा। कंपनी का जमीन था, इसको तो रेलवे अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, हम लोग तो कबूल कर रहे हैं, जब बोलेगा उठना नहीं पड़ेगा। रेलवे पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार पूरा भारतवर्ष में रेलवे अपना जमीन खाली करा रहा है। ठीक है सर, हम तो बोल ही रहे हैं हाँ, कि खाली जब करा रहा तो ठीक है। अगर बाई चांस अगर हम लोग के लिए थोड़ा सा सोचे, हम लोग का जवाब नहीं कर रहे हैं। हम लोग का दर दुकान नहीं है, या रोजी रोटी चल रहा है, दाल रोटी जो भी चल रहा है, यहाँ से उठा जाने के बाद जो है फिर भटकना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। कितना दिन पहले से लगा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ सर जब कोविड हुआ, कोविड से लेके आया सबको। जिसका दुकान था उन लोग भी लेके आ रहा है, जिसका दुकान नहीं था उन लोग बैठा। हम लोग जिस दुकान नहीं है, कितने दुकानदार हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग 100 से ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? नरेश साहब। आप लोग क्या रेलवे कुछ बोला है? रेलवे वाला मतलब तो बोला है क्या? हम लोग शनिवार को उठा दीजिए। आप लोग कल तक उठने बोला है? हाँ, और कितना दिन पहले बोला है? यही तो 3 दिन 4 दिन आगे होगा। अभी आप लोग क्या व्यवस्था करिएगा? हम लोग व्यवस्था है कहाँ जाए, पानी पड़वा दिन में हम लोग उधार उधार, बाकी पैसा भी बहुत फंसा हुआ है। आप लोग तो कोरोना के समय यहाँ पर लगाए थे, कोरोना टाइम में हम लोग आया, तो आप लोगों को जाने का बात था, फिर से वहाँ पर दोबारा पुराना जाने का बात रहा तो देखिए जो हेड है वो सब तो सारी जगह कहाँ लिया। क्या नाम हुआ आपका? रावों का राम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए अग्निपथ परियोजना को लेकर पूरे देश भर में विरोध चल रहा है। चारों तरफ उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को सारा भारत कृषक सभा के खेत मजदूर यूनियन रानीगंज थाना कमेटी ने प्रकल्प को रद्द करने के लिए आवाज उठाई। रानीगंज ब्लॉक ऑफिस में बीडीओ के जरिए देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र सौंपा और अग्निपथ प्रकल्प को रद्द करने की मांग रखी। कृषक और खेत मजदूर संगठन ने कदम डांगा से के विरोध जुलूस निकाला, जो ब्लॉक ऑफिस के सामने अग्निपथ प्रकल्प के विरुद्ध विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से खेत मजदूर यूनियन के नेता पूर्णदास बैनर्जी, कौशिक दास, कृषक नेता मलाई कांति मंडल, कृषक नेता वरुण घोष आदि उपस्थित रहे। ভারতবর্ষ জুড়ে শুধু নয়, আমরা এরপর ডিএম এর কাছে ঘন্টা 5-6 ধরে অবস্থান করে জানতে চাইব বিজেপির অগ্নিবীর আর তৃণমূলের সিপিপি এই দ্বিচারিতা দিদিমণির সেটিং এর বিরুদ্ধে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আজকে আমরা রাস্তায়। আমরা বলছি বেকার যুবরা পেটের যন্ত্রণায় 100 টাকা 200 টাকা মজুরিতে তারা আজকে নিজের জীবনকে বাজি রেখে আইসিগুলিতে পথের ধুলো খেতে খেতে। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तहत चलने वाले बांसड़ा कोलियरी C2 शाखा की ओर से एक पीट मीटिंग की गई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता JBCI के सदस्य एवं ICWF के सचिव सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि कोल इंडिया को निजीकरण करने के लिए केंद्र सरकार जोरों शोरों से प्रयास कर रही है। ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से धीरे धीरे इस उद्योग को वे बेसरकारीकरण की तरफ धकेल रही है। श्रमिकों की सुविधा एवं भ्रष्टाचार को हटाने के लिए सर्वसम्मति से कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण का फैसला किया गया था, लेकिन फिर से निजीकरण की ओर केंद्र सरकार नए नए षड्यंत्र रचकर उसे बेसरकारी बनाना चाहती है। और तो और कोल इंडिया के 35% शेयर्स को भी बेच दिया गया है। दिन प्रतिदिन कोयला उद्योग में काम करने वाले सभी कर्मियों और श्रमिकों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। सभी श्रमिकों और कर्मियों के हित में हमें एक साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा और उनके सभी दुर्नीतियों को रद्द करना होगा। यह हमारी हक की लड़ाई है, इसे हमें किसी भी हाल में जीतना है। इस सभा में मुख्य रूप से
सीटू नेता शांतनु चौधरी, अमृत मंडल, मंगल हेम्ब्रम उपस्थित रहे। सभा का संचालन नूर आलम ने किया। क्या ताकत आप में छुपा हुआ है, ताकत आप में छुपा हुआ है। ये चीज आज आप लोग को सोचने पड़ेगा। सवाल तो यूनियन का नहीं है, सवाल तो झंडा का नहीं है, सवाल यह है आज हम लोग का सामने जो खतरा आ गया, हमारे सामने बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्शन प्लान भारत सरकार का, कोयला मंत्रालय का, देख रहे हैं ना, है ना, है ना, भारत सरकार का कोयला मंत्रालय का एक्शन प्लान, ये लेके भी हमारा साथ चेयरमैन साहब का, डीटी साहब का तर्क हुआ। हम ये चीज बोलने चाहते हैं, आप लोग अगर बोलिएगा कलीग, जिसको जिसको चाहिए व्हाट्सएप में हम आप लोग को भेज देंगे, देख लीजिएगा। और कृपया इसका 10 नंबर पन्ना और 12 नंबर पन्ना तो उठा के पढ़ लीजिएगा। अभी भी पढ़ सकते हैं कि पढ़वे ना कि तो 10 नंबर और 12 नंबर पन्ना पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है 6/5/2022 को मुंबई में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रहलाद जोशी जी बीच में निकालो, 10 नंबर पन्ना दो, निकालो वो। और 6/5/2022 में प्राइवेट पार्टी का साथ मुंबई में जो मीटिंग हुआ, बीच में बैठे हुए हैं आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे कोयला मंत्री, हमारे खदान का मंत्री, उसका बगल में डॉक्टर अनिल जैन कोयला सचिव, उसका बगल में प्रमोद अग्रवाल जी। कौन है प्रमोद अग्रवाल जी? अरे जोर से बोलो भाई, सवेरे नाश्ता वास्ता नहीं किया का? भाई की ना? तो इसीलिए ये लोग मिल के तैयार किया ये रेवेन्यू शेयर बेसिस पर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषदों के नामों की घोषणा के बाद रानीगंज शहर के मेयर परिषद के तौर पर तृणमूल के लोकप्रिय नेता देवेंदु भगत ने पदभार संभाला है। पदभार संभालने की भारी खुशी उनके समर्थकों में दिखी और बधाइयों का तो तांता लगा ही है। रानीगंज के बोरो 2 कार्यालय में BN अग्रवाल अस्पताल के मैनेजमेंट और चिकित्सकों की तरफ से उन्हें फूलों का गुलदस्ता और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के डॉक्टर US झा, डॉक्टर महामिया, डॉक्टर विकास राउत, डॉक्टर दिलीप सिंह और अस्पताल के मैनेजमेंट की तरफ से मुकेश कुमार मौजूद रहे। बहुत खुशी लगा कि हम लोग का अभी देवेंदु भगत को MIC के रूप में चुना गया है और उनको बोरो का उपहार भी अभी इस तरह उनको दिया गया है। हम लोग का पूरा रानीगंज वासी को बहुत सारा खुशी है, इसलिए हम लोग डॉक्टर का पूरा टीम और BN अग्रवाल का जितने मैनेजमेंट है सब मिल करके देवेंदु भगत को हम लोग स्वागत किए और हम लोग खुशी जाहिर किए। इन हमारे डॉक्टर महामिया सर, डॉक्टर झा सर, मुकेश सर, डॉक्टर दिलीप सर, हम लोग सभी ने मिल करके बहुत बहुत उनको बधाई दी है, फूलमाला गुलदस्ता देकर उनका स्वागत। हम लोग चाहेंगे कि दादा इस तरह बने रहें और रानीगंज के लिए बेहतर से बेहतर काम करें और गरीबों को सेवा करते रहें। आपका नाम परिचय? विकास राउत। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर शिल्पांचल सहित विभिन्न वार्डों में दुर्गापुर नगर निगम की ओर से प्लास्टिक उपयोग को बंद करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम के 13 नंबर वार्ड मेन गेट इलाके में MIC तथा इलाके के पार्षद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में जागरूकता अभियान को लेकर रैली निकाली गई। यह रैली की शुरुआत कादा रोड से शुरू होकर मेन गेट इलाके की परिक्रमा कर ओवरब्रिज के नीचे जाकर समाप्त हुई। इस दौरान उपस्थित MIC हेल्थ राखे तिवारी, पार्षद मानस राय, लवली राय सहित तृणमूल कार्यकर्तागण मौजूद थे। धर्मेंद्र यादव ने बताया कि सुबह को वार्ड में प्लास्टिक बंद करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाई गई है।
बाजार इलाके में दुकानदारों को भी जानकारी दे दी गई है कि प्लास्टिक बंद करना होगा, सामान देना उसके जगह थैले का व्यवहार करना होगा। लोगों को बताना होगा कि बैग को लेकर बाजार आएं, नहीं तो सामान नहीं मिलेगा। इस नियम का पालन करना होगा सभी दुकानदारों को। जो बैग लेकर बाजार में नहीं आएंगे उन लोगों को सामान नहीं दिया जाएगा। 500 টাকা জরিমানা বাধ্য থাকবে। অনুগ্রহ করে বিষয়টি আপনারা সহযোগিতা করবেন এই অনুরোধ রয়েছে। বন্ধুগণ, দুর্গাপুর নগর নিগমের পক্ষ থেকে পরিবেশকে দূষণমুক্ত दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। जिला स्वास्थ्य विभाग दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने में अधिक सक्रिय है। दुर्गापुर के व्यवसायी समुदाय ने लगभग 22 लाख रुपए की लागत से दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में 2 वन वार्ड और 1 चाइल्ड वार्ड का जीर्णोद्धार कराया। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कवि दत्ता सहित प्रशासनिक अधिकारी दुर्गापुर के लोगों की लंबी समय से मांग थी कि दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड व वन वार्ड की सेवाओं में सुधार किया जाए। इस पहल का उद्देश्य मरीजों की बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। बच्चों के वार्ड में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 60 और बर्न वार्ड में इसे बढ़ाकर 6 कर दी गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतम ने कहा कि जिस तरह से व्यापारी समुदाय दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के साथ खड़ी है वह वाकई काबिल तारीफ है। दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के सुपर डॉक्टर धीमान मंडल ने कहा कि रोगी कल्याण संघ दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के अध्यक्ष कवि दत्ता के प्रयासों से व्यापारी आगे आए हैं। हाँ ठीक है, আপনি তো ভিজিট করলেন, পুরো ঘুরে ঘুরে দেখলেন আপনি। आज के दुर्गापुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में रोगी कल्याणी समिति कवि दत्ता नेतृत्व में यहाँ पर पीडियाट्रिक वार्ड और मेल बर्न वार्ड और फीमेल बर्न वार्ड इन तीनों यूनिट्स का रिनोवेशन का काम कंप्लीट करके उनको ओपनिंग किया गया। जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर सब डिविजनल हॉस्पिटल में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का फ्लो भी ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ की दुर्गापुर के कुछ व्यापारी और व्यक्ति से सपोर्ट लेते हुए इन लोगों ने इस हॉस्पिटल को एक अच्छे डेवलपमेंट कराने के लिए प्रयास चला। उसी प्रयास का ये बात था ये आज। तो आज हॉस्पिटल में आके जो हम देख के हमको जो अच्छा लगा कि जो जैसे जिस बिल्डिंग जहाँ पर हम लोग खड़ा है और इससे अलावा और भी कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ जो क्रिएट हो रहे हैं, इसे हम आशा रखता है कि हॉस्पिटल का जो पेशेंट्स जो भी आते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधामय होगा। স্যার এখানে একটা স্যার সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা নেই, প্রচুর অ্যাক্সিডেন্ট কেস আছে এখানে, এই সিটি স্ক্যানটা এখনও চালু হয়নি, সেই ব্যাপারে এখানে হসপিটালে আপনারা নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করে দেখতে পারবেন কি বহু রকম ইমপ্রুভমেন্টসের স্কোপ থাকে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই আগে থেকে এখন ইমপ্রুভমেন্টসগুলো হচ্ছে। যে যে সমস্যাগুলো আছে ওটা অলরেডি হসপিটালের কর্তৃপক্ষের নলেজে রয়েছে, ওটা নিশ্চয়ই ওটা আগামী সময়ে ওটাতে আরও ইমপ্রুভমেন্টগুলো নিয়ে আসবে। আর যে ফ্যাসিলিটি সম্বন্ধে আপনারা বলছেন ওটাও ওনাদের কনসিডারেশনের মধ্যে ওরা দেখে নেবে। স্যার, এটা যেহেতু দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল হাসপাতাল, সমস্ত সাব ডিভিশনের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এখানে আসেন আপনি, এই হাসপাতালের পুরো সার্কেলটার ভেতরে বা বাইরে কোনো আলাদা নিরাপত্তার বিষয় কিছু ভাবছেন কিছু করার? হসপিটালের প্রত্যেক হসপিটালের কাছে নিরাপত্তা রাখার জন্য আমাদের নিশ্চয়ই সবসময় দায়িত্ব থাকে ওটা। ওই অর্থে এখানে আরও যদি দরকার পড়ে ওটাও নিশ্চয়ই আমরা করব। আর আমাদের পক্ষ থেকেও এখানে রেগুলার ভিজিটস করাবো, তাতে এখানকার সুপার সাহেব আর সবার সঙ্গে মিলে আর এবং এই রোগী কল্যাণী সমিতি মিটিংগুলোতেও পুলিশের প্রেজেন্স থাকবে, তাতে কোনো ইস্যুস থাকে যেটাতে আমরা ফিল করে কি সবাই মিলে কাজ করে ইমপ্রুভ করার স্কোপ থাকে, নিশ্চয় ওদের উপর আমরা কাজ করবো। আমরা যে অর্থে উনি যা বলছেন কি এই ফ্যাসিলিটিস ও ফ্যাসিলিটিস ওদের পক্ষ থেকেও আমাদের পক্ষ থেকেও যা ইনপুটস পাই ওটাও আমরা মিটিংগুলোতে পেশ করবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডটার আমাদের রিনোভেশন হলো এবং সেটার আবার ইনাগুরেশন করা হলো। যে কোভিডের সময় যে আমাদের যে ওয়ার্ডগুলো ডিসওরিয়েন্টেড হয়ে গেছিলো, এই ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ড যেটা হয়েছিল সেটা আবার ওরিয়েন্টেড করে পরে আবার পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডটা নতুন করে খোলা হলো। এই ওয়ার্ডে বেড সংখ্যা হচ্ছে 70। তা এতে করে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব যেভাবে বানিয়ে দিয়েছেন তাতে করে নতুন
আশা নিয়ে পরে নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে পরে নতুন করে আমরা আর মডার্ন হতে পারি সেই মোটিভ নিয়ে এটা বানানো হয়েছে। আমাদের 70টা বার ইউনিটে 4-4-8টা, 4টে মেল ওয়ার্ড, 4টে মেলের জন্য, 4টে ফিমেলের জন্য। না, ওই পেরিয়াটিকের মধ্যে 5টা ইএনটি বেড আছে, ইএনটি 5টা আই। কত খরচা পড়লো এটা? খরচাটা তো আমি বলতে পারবো না, এটা আমাদের একজন সিএসআর গ্র্যান্ট থেকে দিয়েছেন, আমাদের কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষজন আছেন। আর কি নতুন উদ্যোগ নেওয়া যাবে? এরপরে আমাদের আরও কিছু ওয়ার্ড আছে যে আমরা আবার প্রেজেন্ট করেছি, যে ওয়ার্ডগুলোকে আবার নতুন করে ওনারা করে দেবেন, ওনারা বলেছেন, কথা দিয়েছেন। আর আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব তো লেগেই আছেন এটা ঠিকঠাক করার জন্য। আমি আশা রাখবো যে ওনার উদ্দেশ্য সফল হোক, আমরা ভালো জায়গায় পৌঁছে যাবো। স্যার, যে হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে কোভিড আরও বাড়ছে, সেই নিয়ে কতটা উদ্যোগ আপনাদের? আমরা পুরোপুরি তৈরি কোভিডের জন্য, যদি কোভিড আসেও আমরা তৈরি আছি। আমাদের মোটামুটি 120খানা বেড আমাদের সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন পাইপলাইন করা আছে। তো কোভিড এলেও আমরা খুব বেশি হবে না, খারাপ কথা যাবো না, অক্সিজেন প্রবলেম হবে না। এটা শুনলাম যে চেম্বার অফ কমার্স থেকে আপনারা বলেছিলেন কোনো ব্যবসায়ীকে তারা করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমরা দেখো, আমরা সবটাই এই যে আমার সঙ্গেই ধরো যা বন্ধু বান্ধবরা আছে, এই যে বার্ন ইউনিট বলছো, এই যে সঞ্জীব আগরওয়াল উনি আমাকে সাপোর্ট করেছেন। আমাদের যে ফিমেল ওয়ার্ড যেটা তোমরা দেখছো সাপোর্ট করেছেন, এই যে নবনীত আগরওয়াল এরা সাপোর্ট করেছেন। সবার থেকে সাহায্য নিয়ে, সবার হেল্প নিয়েই করছি এবং ভবিষ্যতে সেভাবেই করব। আমরা ধরো এখনও আমি বলছি, যেমন এই যে আজকে চাইল্ড ওয়ার্ডটা হলো আমাদের, এতে কিছু কাজ আমরা একটু বাকি রয়ে গেছে, তাড়াহুড়োতে আমরা করতে পারিনি। যেমন এই ওয়ার্ডটা আমাদের ইচ্ছা আমরা এসি করে দেবো এবং আমরা ভেরি শিওর, আমি একটু বেশি টাইম নিয়েই বলছি, যে আগামী 2 মাসের মধ্যে ওটা আমরা পুরো এয়ার কন্ডিশন হবে এবং চ্যানেল মিউজিক হবে, যাতে বাচ্চারা একটু সকাল সন্ধ্যা অ্যাটলিস্ট একটু হ্যাঁ, ইটস এ প্র্যাকটিক্যালি আমরা একটু এটাকে একটা কর্পোরেট লুক, মানে পুরোটা না হলেও যতটুকু দেওয়া যায় সরকারি উদ্যোগের মধ্যে সেটা করার চেষ্টা করছি। এবং এটা হচ্ছে সোসাইটির, নট অনলি বিজনেসম্যান, সব সোসাইটির সবার হেল্প নিয়ে এই মুহূর্তে দেখো এদের হেল্প নিয়ে করেছি। এবার পরবর্তীকালে আমরা ইমিডিয়েটলি আমরা হয়তো মেল ওয়ার্ডারতে হাত দেবো। মেল ওয়ার্ডারটা আরেকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমাদের কথা হয়ে রয়েছে, সে আমাদেরকে সাপোর্ট করবে, লাইক দিস অ্যান্ড দ্যাট। এবার সরকার এছাড়া শুধু এটা না, এছাড়া আমাদের ধরো আমি তোমাদেরকে কতগুলো জিনিস বলি, আজ যখন সুযোগ পেয়েছি, আমরা হসপিটাল নিয়ে আমাদের প্ল্যান আছে যে আমাদের যে টোটাল আউটডোর ইউনিট আমাদের এখানে দিনে ধরো তোমরা জানো সকালে কত হাজার লোক পেশেন্ট থাকে এখানে সকালে আউটডোরের জন্য। এবার ওই আউটডোরের প্রেশারের জন্য এমার্জেন্সি প্রেশারের জন্য কি হচ্ছে যে আমাদের যে মেন যে ওটি ইউনিট প্লাস হোটেলের যারা পেশেন্টরা থাকে তারা সত্যি সত্যি খুব ডিস্টার্ব হয়। তা আমরা আমাদেরই এক বন্ধুকে রিকোয়েস্ট করেছি, সে একটা বিল্ডিংস তার সিএসআর ফান্ডিংয়ে ধরো প্রচুর টাকা, ধরো 1 কোটি 1.5-2 কোটি টাকা খরচ করেছে, বানিয়ে দেবে। তাতে কী হবে, আমরা সেখানে ওপিডি বিল্ডিংটা আমরা পুরো পার্টটা সেখানে শিফট করে নেবো। নট অনলি ওপিডি, আমরা সেখানে ধরো এক্স রে বলো, যেগুলো আদার যে ফ্যাসিলিটিসগুলো সেগুলো শিফট করে নেবো। তাহলে কী হবে, আমাদের মেন বিল্ডিংটাতে আমাদের প্রেশারটা কমবে। তখন মেন বিল্ডিংটা আমরা নিচটাতে আমরা আরও বেড বাড়াবো এবং সে ধরো অটোমেটিক্যালি এই হসপিটালের প্রেশার আছে, ধরো 3টে ডিস্ট্রিক্টের আমরা প্রেশার পাই। আমরা ইস্ট বর্ধমানের একটা বড় পার্টের প্রেশার নিই, বীরভূমের বিশাল পার্টের প্রেশার নিই, বাঁকুড়াতে বর্জরাতে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল থাকার পরও বাঁকুড়ার একটা পার্টের আমরা বড় প্রেশার নিই, প্লাস আমাদের নিজেদের জেলাতেও রয়েছে। তা এই সব মিলে 4টে ডিস্ট্রিক্টের প্রেশার আমাদের এই হসপিটালের উপর থাকে। যদিও ওটা একটা সিম্পল সাব ডিভিশনাল হসপিটাল, কিন্তু আমরা এটাকে চেষ্টা করছি বেডটা বাড়াতে এবং আমি ভেরি কনফিডেন্ট আগামী 2 বছরের মধ্যে আমরা যা বেড আজকের দিন আমাদের আছে উইল মেক ইট অ্যাটলিস্ট ডাবল। এবং একটা 100 বেড মতো একটা আমরা বিল্ডিং একটা গভর্নমেন্ট ইয়েতেই আমরা বানানো হচ্ছে, যেটা অলরেডি কনস্ট্রাকশন আমরা বেসিক হাত পড়ে গেছে, সেটাতে আমরা পুরো ফিমেল পার্টটা আমরা করবো। এম আই রাইট? আমরা ফিমেল ওয়ার্ডটাকে সেখানে শিফট করে নেবো, সেখানে মোটামুটি 100 বেড হবে। একটা জায়গায় 4জন পেশেন্ট থাকে ভাই, থাকে। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। केंदा एरिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से AAMC पॉलिसी के खिलाफ केंदा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय गेट पर घंटों प्रदर्शन किया गया। महाप्रबंधक JN विश्वाल के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन के संदीप बैनर्जी, अनूप गोस्वामी और संदीप सरकार ने बताया कि ECL में नई पॉलिसी लागू करनी जा रही है। जो भी टेंडर होगा, चाहे कैपिटल हो या रेवेन्यू, सभी का टेंडर ECL से किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एरिया में जितने भी छोटे और बड़े ठेकेदार हैं, सभी के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस पॉलिसी का विरोध केंदा एरिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन करती है। आज हम लोग महाप्रबंधक के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन समाप्त किए हैं। अगर यह पॉलिसी लागू करने का प्रयास हुआ तो एसोसिएशन बड़ा आंदोलन करने पर बाध्य होगी। इस आंदोलन को सफल बनाने में निमाय, वर्णवाल, राणा सहित अन्य ठेकेदार मौजूद रहे। যখন
আমরা খেতে না পারো তখন আপনাদের খাওয়া বন্দোবস্ত যাতে বন্ধ করা যায় সেই ব্যবস্থা আমরা করব। আমাদের লড়াই নীতির বিরুদ্ধে। আমরা কিন্তু এই যে নীতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই চাপিয়ে দেওয়া নীতি আমরা মানছি না। যারা ছোটখাটো কন্ট্রাক্টর আছে, যারা ইসরায়েলকে সমস্ত রকম ভাবে সহযোগিতা করে গেছে, আর আজকে ডেকে এসে যদি এই পাঞ্জাবি শুরু হয় তাহলে কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে মানছি না। তাই প্রত্যেককে যদি আপনারা দেখেন আউটসোর্সিং এ যেসব লোকাল ছেলেদিকে এনগেজ করে যে লোকগুলোকে লাগিয়েছিল তাদের উপর এক প্রকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা আজ এখানে একটা বিক্ষোভ প্রদর্শনের সূচনা করলাম। আগামী দিনে আমাদের পেটে যদি লাট পড়ে তাহলে আমরা কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব এবং যেখানে যতটুকু পারি আমরা আমাদের কাগজ দিয়ে এই লড়াইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো এবং আমরা এই এএমসি অতএব গ্লোবাল টেন্ডার আমরা মানছি না এবং মানব না। তাই প্রত্যেককে অনুরোধ করবো একটু ওইদিকে নিয়ে যাবো, যেটা সামনে রাখবে ভাই। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। मां कल्याणेश्वरी चापतोड़िया लैंड लूजर समिति द्वारा पिछले 2 महीने से जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर बेगुनिया एरिया 12 मुख्य गेट के सामने धरना पर लोग बैठ गए। समर्थन में अड्डा वाइस चेयरमैन सह तृणमूल कांग्रेस जिला चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी ने अपने समर्थकों के साथ एरिया 12 की महाप्रबंधक पीके मिश्रा के साथ वार्ता करने पहुंचे। इस अवसर पर श्री चैटर्जी ने कहा कि पिछले 53 दिनों से धरना पर बैठे लोगों को महाप्रबंधक की ओर से किसी भी प्रकार की नौकरी के संबंध में कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के अधिकारी जानबूझकर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के अधीन बंगाल में जितने खदान हैं उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बंद करना चाहती है। इस मंशा को तृणमूल कांग्रेस के लोग कभी भी सफल होने नहीं देंगे। मालूम हो कि 10 से अधिक लोगों की जमीन बीसीसीएल द्वारा अधिग्रहण की गई है। उक्त जमीन के बदले अभी तक उन लोगों को नौकरी नहीं दी गई है। इसके चलते धरना चल रहा है। आज की वार्ता भी असफल रहा। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री मिश्रा ने कहा कि जिनकी जमीन ली गई है उनको नौकरी देनी होगी। कागजात की प्रक्रिया में कुछ लगने के कारण विलंब हो रहा है। इस बैठक में तृणमूल नेता शुभल चक्रवर्ती, महिला तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मौमिता सेनगुप्ता, पप्पू सिंह, सेजल घोष, बावन मुखर्जी, अरमान खान, अपराजित बैनर्जी, प्रबंधन की ओर से एजीएम डीके चक्रवर्ती, एपीएम जगदीश कर्मकार, दामगोड़िया पीओ सुमंतो राय, उप प्रबंधक स्टेट राजन कुमार, एरिया स्टेट श्रीपाल कुल्टी, आईसी कृष्णेंदु दत्ता, बराकर फाणी प्रभारी राजशेखर मुखोपाध्याय, शहीद सीआई सेफ के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में तृणमूल नेता सुबल चक्रवर्ती, महिला तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मौमिता सेनगुप्ता, पप्पू सिंह, सेजल घोष, बावन मुखर्जी, अरमान खान, अपराजित बैनर्जी और प्रबंधन की ओर से एजीएम डीके चक्रवर्ती, एपीएम जगदीश कर्मकार, दामगोड़िया पीओ सुमंतो राय, उप प्रबंधक स्टेट राजन कुमार, एरिया स्टेट श्रीपाल कुल्टी, एरिया स्टेट श्री और कुल्टी आईसी कृष्णेंदु दत्ता, बराकर फाणी प्रभारी राजशेखर मुखोपाध्याय सहित सीआईएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे। धरना में बैठे अनिर्बन लायक, राहुल मंडल, सौभिक मुखर्जी, शुभम बैनर्जी, विमान दत्ता, सायन मुखर्जी, जोशना घोष सहित अन्य लोग शामिल थे। चला नौकरी का लेकर क्या नतीजा निकला उसका? आज के लैंड लूजर যে জমিগুলো বিসিসিএল এই এলাকাতে আগে কয়লা উত্তোলন করেছে মালিক দিকে না জানিয়ে কোনোরকমভাবে সেগুলো যেগুলো মালিকদের কনসেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বা অন্যান্য কিছু ছিল তা মনে করেনি, সরাসরি কেটে নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চলছে। বহুজনের জমি বহুদিন ধরে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, বিসিসিএলকে যেগুলো করার দরকার আছে রেজিস্ট্রি করে দেওয়া, আরও সব কিছু করা,
সব হয়ে আছে, অনেক ছেলের মেডিকেলের পড়ে আছে, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এরা সেগুলোকে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে এবং কোনোটা দেখা যাচ্ছে 5 বছর 6 বছর 7 বছর এরকমভাবে পড়ে রয়েছে। আজকে সেই জমির মালিক যারা 53 দিন 53 ডেজ আজকে হলো এখানে ধর্নায় বসে রয়েছে, প্রত্যেক দিন সকাল আসে রাত পর্যন্ত থাকে, বসে থাকে, কিন্তু কোনো রকম এরা গ্রাহ্য করছে না। এবং এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বাংলায় যতগুলো কুলিয়ারি আছে সেগুলোকে বন্ধ করে আস্তে আস্তে চলে যাওয়া। তো আমরা সেগুলো হতে দিচ্ছি না। আমরা যেটা তৃণমূল কাंग्रेसের কর্মী রয়েছি, আমরা অন্য क्या बोलेंगे? क्या मिल रहा है उनको? तारीख ही मिल रहा है, डेट ही उन लोग को मिल रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या बोलेंगे? 4 साल से है पेंडिंग। रिसेंटली 1.5 महीना में काम थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, और प्रोग्रेस हुआ है तो जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, 1 by 1 क्लियर होगा। तो सर क्या लगता है कितने दिनों में ये लोग को नौकरी मिल जाएगी? देखिए अप्रूविंग अथॉरिटी हम भी तो नहीं है, लेकिन जो अप्रूविंग मतलब 3 महीना लगना चाहिए, जो लग रहा है मैक्सिमम। आज बैठक किया गया, बैठक में क्या नतीजा निकला? लोगों नीचे को सर वो बोरे सर आज जो बैठक हुआ आप लोगों का आज क्या हुआ उस बैठक में? बराकर से संजय यादव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।